Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the precious Lamb of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद स्तुति हो, धन्यवाद स्तुति हो. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Bless you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डबोता हूँ, खुद को लहू में डबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम, आए हैं हम. गाइए मेरे साथ. मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जान से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा है, मीठी मीठी जिंदगी, ये रूह की ताजगी,
नई जोत लेने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम, आए हैं हम। Hallelujah. Lord Jesus, we bless you, we praise you, we magnify your holy name, for your name is name above every name. We declare the kingship, the majesty, the glory, the dominion of your holy name. We declare the power, the authority that is in your name. And we declare the power of the blood of Jesus, Father. We declare the power of the blood of Jesus. We declare the power of the blood of Jesus. We declare the power of the blood of Jesus. We declare the power of the blood of Jesus. I declare over everyone that is listening to me, Father, the power of your blood. I declare the power of the blood of Yahushua HaMashiach. I declare the power of the blood of Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach over everyone. Declare the power of the blood of Yahushua HaMashiach over everyone. Declare the power of the blood of Yahushua HaMashiach over everyone. I declare the power of Yahushua HaMashiach over everyone. Declare the power of Yahushua HaMashiach over everyone. I bring everybody under the authority and dominion of the blood of Jesus. I bring everyone under the dominion and authority of the blood of Jesus. Hallelujah. तेरे लहू की जय। चंगा करने वाले जीवित लहू की जय। छुटकारा देने वाले, मोक्ष देने वाले जीवित लहू की जय। अद्भुत जीवित लहू की जय। यीशु मसीह तेरे अद्भुत जीवित सामर्थी लहू की जय। तेरे अद्भुत जीवित सामर्थी लहू की जय। तेरे अद्भुत जीवित और सामर्थी लहू की जय। हालेलुया। छुटकारे के खून की जय। मोक्ष के लहू की जय। हालेलुया। कफारे की जय। हालेलुया। कफारे की जय। कफारे की जय। यीशु मसीह तेरे पवित्र कफारे की जय। तेरे पवित्र कफारे की जय। हालेलुया। तेरे लहू के कफारे की जय। लहू के कफारे की जय। तेरे पवित्र लहू। सभी यीशु मसीह के लहू को पुकारिए। हालेलुया। लेट्स ऑल कॉल अपॉन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। सभी यीशु मसीह के लहू को पुकारिए। हालेलुया। सबके सब। हालेलुया। पुकारिए यीशु मसीह के जलाली खून को। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली लहू को पुकारें। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली लहू को पुकारिए। लहू को पुकारिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे लहू की जय। लहू की जय। लहू की जय। लहू की जय। यीशु मसीह तेरे लहू की जय। लहू की जय। तेरे पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय। लहू की जय। लहू की जय। यीशु मसीह हम तेरे पवित्र लहू को पुकारते हैं। लॉर्ड, I plead your blood by faith over everyone. I plead the blood over their houses, over their homes by faith, Lord. I plead the blood of Yahushua HaMashiach. I plead the blood of Yahushua के खून को मैं छिड़कता हूँ तेरे लोगों के ऊपर। I plead the blood of Yahushua. Father, I plead the blood of Yahushua HaMashiach. I plead the blood of Yahushua HaMashiach. I plead the blood of Yahushua HaMashiach. I plead the blood of Yahushua. Hallelujah. Hallelujah. तेरे लहू की कुदरत तेरे लोगों के जीवन में काम करे स्वर्गीय पिता। Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we praise you and we magnify you. Hallelujah. तेरी जय जयकार हो यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा हो। तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह। हालेलुया। 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 तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। 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 हालेलुया। अपने जीवन की प्रार्थना विनतियाँ प्रभु के आगे उठाइए सभी। हालेलुया। सुरजीत साबी की प्रार्थना विनती है। उसके माता पिता को मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावंद, तेरे खून में छिपाता हूँ। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरे खून में छिपाता हूँ। तेरे खून की कुदरत को मैं खोलता हूँ यीशु मसीह। तेरे लहू के अभिषेक को खोलता हूँ। तेरे लहू के मसा को खोलता हूँ।
तेरे खून की कुदरत को, तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। Lord, I bring Sister Ruby from Britain. She sent her prayer request. I bring those petitions before your throne of grace. All her prayer requests before your throne of grace, Lord Jesus. Hallelujah. खुदावंद, और जिन लोगों ने प्रार्थना की विनतियाँ भेजी हैं, उन सब प्रार्थना विनतियों को मैं तेरे क्रूस के आगे लेकर आता हूँ। यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा जीवित यीशु मसीह, अद्भुत यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो दिन है, ये प्रार्थना के दिन है, में जुड़ने के, सटे रहने के प्रभु के साथ। तो प्रभु के संग चिपक जाइए, प्रभु के कलाम के साथ चिपक जाइए। संसार की चीज़ों के पीछे मत भागिए, संसार की चीज़ों के पीछे मत भागिए। आपको मालूम, मैं अक्सर आपको ये वचन बताता हूँ। प्रेरित पौलुस लिखता है तीमुथियुस को, प्रेरित पौलुस कहता है, दे विल प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। वो पंजाबी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, बदरूओं की शिक्षा देंगे। लेकिन अगर आप उस वर्ड को ग्रीक में स्टडी करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, तो ग्रीक जो वर्ड है वो है डिडास्कलिया डायमोनिया। डिडास्कलिया डायामोनिया। डाया मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, मोनिया मीन्स फॉर्चून। फॉर्चून डिस्ट्रीब्यूट करने वाली शिक्षा। मनी, वेल्थ को परसू करो, वेल्थ के पीछे भागो, बीजो, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, बड़ा बीज, बड़ी, इस तरह की शिक्षा प्रेरित पौलुस उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है। आपको मालूम, प्रेरित पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन को, तीमुथियुस को लिख रहा है। लेकिन हम तीमुथियुस को कहीं भी पॉल को पापा, डैडी कहते, एड्रेस करते नहीं देखते। तो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, पर्सनल एपिसल हैं ये, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड तो प्रेरित पौलुस ने अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसे उसका गला काट दिया गया था, बिहेड कर दिया गया था, उससे पूर्व लिखता है। आपको मालूम, तीमुथियुस जो है वो एफेसस की कलीसिया का पास्टर है, और एफेसस की कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया थी। एफेसस की कलीसिया में यीशु मसीह की माता मरियम यूहन्ना के साथ एफेसस में रहती थी। जब प्रभु ने यीशु मसीह ने क्रूस से कहा यूहन्ना को, देख तेरी माता, और अपनी माता को कहा, देख तेरा पुत्र, तो यूहन्ना यीशु मसीह की माता मरियम को लेके चला गया अपने साथ। और हिस्ट्री बताती है कि वो एफेसस में रहे। एफेसस में मरियम के नाम की एक चर्च भी है, और मरियम की ग्रेव भी वहीं पे है एफेसस में। तो यूहन्ना यीशु मसीह की माता की खिदमत तब तक करता रहा जब तक वह प्रभु में सो नहीं गई। और एफेसस की कलीसिया में यूहन्ना जैसे कदावर परमेश्वर के दास की शिक्षा थी, और उसी कलीसिया में तीमुथियुस को पासवान लगाया गया। तो बहुत से लोग तीमुथियुस को तुच्छ जानते थे। तो प्रेरित पौलुस क्या लिखता है पत्री में, कि तू नमूना बन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। प्रेरित पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को, क्योंकि तीमुथियुस इंटिमिडेट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जोरावर स्पिरिचुअल स्टालवॉल्ट हैं वहाँ पे, स्पिरिचुअल जायंट्स हैं। एफेसस की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के संग रहे थे, जो यीशु मसीह के 70 चेले थे, उनमें से भी कुछ वहाँ पे हैं। तो पौलुस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए वॉज टू यंग।
तो प्रेरित पौलुस उसे चिट्ठी लिख के क्या कहता है? कहता है, यू रिमेंबर व्हेन आई लेड हैंड ऑन यू, जब मैंने तेरे ऊपर हाथ रखे, स्वर्ग से पिता ने तुझे वरदान दिया। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? फैन दैट फ्लेम, वो जो आग तेरे अंदर है, जो मेरे प्रार्थना करने के द्वारा प्रेरित पौलुस कहता है तेरे ऊपर उतरी, तेरे अंदर आई, ऐसे ऐसे फैन कर उसे। फैन द फ्लेम दैट इज विद इन यू। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की आग को क्या कर? ऑक्सीजन चाहिए अग्नि को, वरना अग्नि बुझ जाएगी। बहुत सारे लोग इस समय, आपको मालूम किस दशा में हैं? मैं जैसे देख रहा हूँ कलीसिया को विश्व भर में, उनकी आग ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग डिसएन्चांटेड हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर से प्रेम ख़त्म हो रहा है प्रभु के लिए। बहुत सारे लोगों में से एक दूसरे के लिए प्रेम ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर प्रार्थना की अब आग नहीं है, कलाम को खोजने की चाहत नहीं है, यीशु मसीह का वचन फैलाने की, लोगों से यीशु मसीह बांटने की चाहत नहीं है, क्योंकि ये अंत के दिन है। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा था? प्रेरित पौलुस कहता है, दे विल प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, डिडास्कलिया, डायमोनिया। डायमोनिया का मतलब फॉर्चून डिस्ट्रीब्यूट करने वाली तालीम। फॉर्चून, दौलत, संसारी चीज़ें, संसारी बरकतें, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस है ये। उसी पत्री में प्रेरित पौलुस आगे जाके कहता है 6 अध्याय में, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। बहुत सारे लोगों का पतन हो रहा है इस समय। बहुत सारी सेवकाइयों का भी पतन हो रहा है, जिन्होंने गलत शिक्षा दी। मैं कल आपको बता रहा था, जब ये परमेश्वर का सच्चा कलाम पेश किया जाता है तो बरकत उतरती है। लेकिन जब इस कलाम की जगह ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, परंपराएं, रीति रिवाज और इंसानों की तालीम दी जाती है कि इंसान की क्या ओपिनियन है इसके विषय में, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इस कलाम पे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी ओपिनियन नहीं देता भाई और बहनों, परमेश्वर आदेश देता है। राजा ओपिनियन नहीं कभी देता, राजा रॉयल डिक्री देता है। हालेलुया। और उसके आगे हमने नतमस्तक होना है, उसको मानना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बनाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, क्या जब मैं आऊँगा, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में जीसस कहते हैं, व्हेन आई कम विल आई फाइंड फेथ ऑन दी अर्थ। जब मैं आऊँगा तो क्या मुझे विश्वास मिलेगा, जो इसके द्वारा पैदा होता है। जब ये सच्चा कलाम, ये कलाम सच्चा बीज है, ये बीज जब आपके अंदर डाला जाएगा तो पवित्र आत्मा उस बीज को आके पानी देगा, और इस बीज में से ईमान का, विश्वास का पौधा निकलेगा, और विश्वास की फसल आपके अंदर पैदा होगी। एक बार प्रार्थना यीशु मसीह के आगे की गई, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा दे। तो यीशु मसीह ने उनको कोई फार्मूला नहीं दिया विश्वास बढ़ाने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाइबल के अंदर ऐसे फार्मूलाज नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु ने उनको बल्कि क्या कहा? अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना विश्वास हो। यीशु मसीह ने ये फार्मूला नहीं बताया कि विश्वास कैसे इनक्रीज हो, बल्कि ये बताया कि राई के दाने जितना हर एक व्यक्ति के अंदर है, और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। ये विश्वास जिसके द्वारा आपने और मैंने मुक्ति पाई है, ये विश्वास आपने और मैंने अपने अंदर जनरेट नहीं किया है। हम पापी थे, गुनहगार थे, हम अंधकार में जन्मे थे, अंधकार में जी रहे थे, पाप की दलदल में धंसे थे, पाप का बीज हमारे अंदर पनप रहा था, सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलग हो चुके थे, हम आत्मिक रीति से परमेश्वर से टूटे हुए थे, हमारे अंदर कोई भी भली वस्तु नहीं थी, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हमारे जीवन में कोई भली वस्तु नहीं थी जो सच्चा विश्वास पैदा कर सके। परमेश्वर ने सुपरनैचुरली विश्वास का एक राई के दाने जितना विश्वास नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी रखा है। नास्तिक व्यक्ति को भी विश्वास करना पड़ता है। वो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर नहीं है। He has to believe that there is no God. हालेलुया। तो
प्रभु कहते हैं कि एक राई का दाना है, उसको नर्चर करना है, फलवंत करना है, पानी देना है, खाद देनी है, उसकी परवरिश करनी है, वो पौधा बनेगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री में से। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 20-21 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। 20 वचन। नाउ द गॉड ऑफ पीस दैट ब्रॉट अगेन फ्रॉम द डेड अवर लॉर्ड जीसस, दैट ग्रेट शेपर्ड ऑफ द शीप, थ्रू द ब्लड ऑफ द एवरलास्टिंग कवेनेंट। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है नाउ गॉड ऑफ पीस। हालेलुया। शांति का परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। थियोस आइरीन ग्रीक वर्ड है, लेकिन हिब्रू वर्ड है पीस के लिए शालोम। हालेलुया। आपको मालूम जो ग्रीक पर्सपेक्टिव है, ग्रीक जो अंडरस्टैंडिंग है पीस की, वो बहुत लिमिटेड है। ग्रीक में पीस का मतलब है आइरीन, शांति, जिसका मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जो असल में पीस है वो हिब्रू वर्ड में है, शालोम में। आपको मालूम शालोम का मतलब ये नहीं है दैट यू हैव नो कॉन्फ्लिक्ट, दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम, दैट यू विल हैव नो स्टॉर्म इन योर लाइफ, दैट यू विल हैव नो चैलेंजेस इन योर लाइफ। दैट्स नॉट द हिब्रू वर्ड प्रॉमिसेस। हिब्रू वर्ड शालोम सेज नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन, नथिंग लैकिंग। आपके जीवन में कुछ भी टूटा नहीं है, आपके जीवन में कोई भी चीज़ की घटी नहीं है। योर लाइफ इज मेड परफेक्टेड ऑन द इनसाइड। बाहर बेशक स्टॉर्म्स चल रहे हैं, जीवन में परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं बाहर, लेकिन अंदर एक ऐसा सुकून है, एक ऐसा इत्मीनान है, एक ऐसी शांति है, एक ऐसी तसल्ली है। किसी ने इसे कहा शालोम को इनर ट्रैंक्विलिटी। यू आर ट्रैंक्विल ऑन द इनसाइड। यीशु मसीह नाव के निचले हिस्से में जाके सो गया। तूफान आया और पानी नाव में भर रहा था। यीशु मसीह गीला हो रहा होगा, पानी के अंदर ही लेटा होगा, लेकिन फिर भी सो रहा है वो, बिकॉज ही इज शालोम। उसका नाम है सार शालोम। सार शालोम, शांति का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ शालोम। एक ऐसी अनुभूति है, इनर ट्रैंक्विलिटी, ऐसी अंदर से एक सरेनिटी है, एक डीप सुकून आपके अंदर है जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, जब आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाता है। आपको पता लगता है आपके अंदर जो भी कुछ था, आपका पास्ट, आपके अंदर आपकी सोल में जो कुछ इकट्ठा था, गंदगी, बदकारी, पुरखों के, पीढ़ियों के पाप, शराब, आपको पता लगता है सब समाप्त हो गए और आपका अंतर मन तसल्ली से भर जाता है। बेशक जीवन में परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, आप उनका सामना करते हो, प्रभु आपके संग है, लेकिन अंदर से आप पैनिक में नहीं हो। ये दुनिया पैनिक मोड में है, डर में है, भय में है इस वायरस से। बट प्रभु क्या करेगा? वचन में लिखा नाउ गॉड ऑफ पीस। हमारे परमेश्वर की परिभाषा क्या दी गई है? ही इज गॉड ऑफ शालोम। हमारा प्रभु है शालोम का राजकुमार, हमारा पिता है शालोम का परमेश्वर। दैट ब्रॉट अगेन फ्रॉम द डेड अवर लॉर्ड जीसस, जो मुर्दों की दुनिया में से, कहाँ से? मुर्दों की दुनिया में से किसे लेकर आया? हमारे प्रभु यीशु मसीह को लेकर आया। मुर्दों की दुनिया में से एक ही वापस लौटा है, मुर्दों की दुनिया को जीत के, पाताल को, मौत को, अधोलोक को जीत के एक वापस लौटा है, उसका नाम है यीशु मसीह। दैट ग्रेट शेपर्ड ऑफ द शीप, वो भेड़ों का महान गडरिया है। शैतान भेड़िया है, गडरिया नहीं है, वो भेड़िया है, भेड़ के रूप में आता है। यीशु मसीह महान गडरिया है,
थ्रू द ब्लड ऑफ द एवरलास्टिंग कवनेंट। अब देखिए कितनी अद्भुत बात लिख रहा है। यीशु मसीह कहाँ गया? यीशु मसीह गया पाताल में, शियोल में। हालेलुया। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, एक वचन निकालें। हालेलुया। आई थिंक इट्स इन 103। मैंने आपको वचन उस पे दिया, उस भजन पे, साम 103, 103 ज़बूर निकालिएगा, ज़बूर 103 निकालिए। हालेलुया। साम 103। देखिए प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पे। देखिए वचन नंबर 4 पढ़ें। Who redeemeth thy life from the destruction। Hallelujah। Who redeemeth thy life from the destruction and crowneth thee with loving kindness and tender mercies। यहाँ पे लिखा है जो तेरी जान को, यहाँ डिस्ट्रक्शन लिखा है लेकिन हिंदी में लिखा है खड्डे से, फ्रॉम द पिट। इंग्लिश की दूसरी ट्रांसलेशंस में लिखा है ही रिडीम्स योर लाइफ फ्रॉम द पिट। वो खड्डे से तेरी जान को छुड़ाता है। लेकिन आपको मालूम यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड क्या है हिब्रू में? हिब्रू में ओरिजिनल वर्ड है शियोल, पताल। वो पताल में से तेरी जान को क्या करता है? छुड़ा लेता है। पताल में से मुझे यहोवा परमेश्वर ने पताल में से छुड़ाया, मुझे मालूम है। मैं मर जाता, डॉक्टर ने बोला मैं मर जाऊंगा, मैंने बोला मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और यीशु मसीह के महिमा के कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। एक बार नहीं मेरे जीवन में हुआ भाई और बहनों, मेरे जीवन में ऐसा कई बार हो चुका है। मैंने मृत्यु को ऐसे अपने सामने 2-4 फुट के फासले पे खड़े देखा है, एक बार नहीं कई बार। हालेलुया। जीवन, जीवन, द लाइफ, अक्षय जीवन, अखंड जीवन, द इटर्नल लाइफ, एक व्यक्ति का नाम है, वो है व्यक्ति यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट इज द इटर्नल लाइफ, द लाइफ दैट नेवर बिगैन, द लाइफ दैट शैल नेवर एंड। यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर हमेशा जयवंत होता है। वो तेरी जान को खड्डे से छुड़ाता है, शियोल से। वो शियोल से, पताल में से तुझे निकाल लाएगा। मुझे निकाल कर लाया कई बार। मेरे जीवन में ऐसी अद्भुत साक्षी है, मैं मर गया होता, मेरी अपनी बदकारी के कारण, मेरी अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण मैं स्वयं प्रभु के पथ पे नहीं चला, घमंड और संसारी चीज़ों का पीछा किया और शैतान ने मेरी जान को खड्डे में गिरा। यीशु मसीह ने मेरी जान को खड्डे में से निकाला। मैंने स्वयं ऐसे, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको बता रहा हूँ, कई बार मेरा मौत से सामना हुआ है। आपको मालूम बाइबल में लिखा है यीशु मसीह एक गांव को जा रहे हैं, उस गांव का नाम है नयन, नयन सिटी, विलेज ऑफ नयन। नयन नाम के एक गांव में यीशु मसीह जा रहे हैं। उस समय हर गांव का गेट हुआ करता था, जैसे पंजाब में भी बड़े गांव के बाहर गेट बने होते हैं। तो यीशु मसीह गेट से जैसे एंटर कर रहा है, नयन, नयन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर गांव के अंदर यीशु मसीह ऐसे प्रवेश कर रहा है तो सामने से जनाजा आ रहा है। एक जवान लड़के का मर गया है, उसे एक बॉक्स में, उस समय खुला बॉक्स लेकर जाते थे, ऊपर से बॉक्स खुला होता था, उसके अंदर डेड बॉडी को डालकर लेकर जा रहे हैं। और ये जवान एक विधवा का बेटा है। ऐसे गांव के फाटक के अंदर यीशु मसीह जाने वाला है, गांव के फाटक से बाहर जनाजा आ रहा है, अर्थी आ रही है एक जवान मुर्दे की। हालेलुया। गांव के अंदर कौन जा रहा है? यीशु मसीह, जो जीवन है। गांव के अंदर लाइफ जा रही है और गांव के बाहर से क्या आ रहा है? कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं एक विधवा के जवान बेटे को। तो जीवन, वचन में लिखा है, यूहन्ना लिखता है, वो जीवन जो पिता के अंदर छिपा था, अनंत जीवन, अक्षय जीवन, जिसने इस ब्रह्मांड को तंबू की तरह ताना है, जिसने खरबों गुना खरबों गुना खरबों गुना खरबों गुना खरबों, ट्रिलियंस एंड जिलियंस
स्टार्स बना के इसका श्रृंगार किया है। जो सूर्य को आदेश देता है वो दूल्हे की मानिंद निकलता है। जो चांद को आदेश देता है, सौर मंडल, पूरा सकल ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड उसके आदेश की पालना करते हैं। वो इन सबको थाम के रखे हुए है। देखिए, किसी चीज़ में कोई पोल नहीं लगा है, सपोर्ट नहीं है, नीचे कोई डंडा नहीं लगा है, हर एक चीज़ अपनी जगह घूम रही है। किसने इसको थामा हुआ है? विज्ञान जिसे ग्रेविटी कहते हैं, वो उसके कलाम की कुदरत है। हालेलुया। वो अद्भुत महाप्रतापी यीशु जो समुद्रों के पानी को ऐसे उठा लेता है, जो झिड़कता है पहाड़ उसके आगे भाग जाते हैं, जो पवन को पंख बना के उड़ता है, जो ज्योतिर्मय वस्त्रों में अपने आप को ढांप के रखता है, जो अगम्य ज्योतियों में वास करता है जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता, जिसके क्रोध से पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, वो महाप्रतापी, जीवित, यशस्वी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव की देह में उसने अपने आप को खाली कैसे किया मैं समझ नहीं सकता। वचन में लिखा उसने अपने आप को खाली कर दिया और दास का रूप लिया। अब देखिए, अगर एक गिलास मेरे पास पानी भरा हो तो इस गिलास भरे पानी को मैं एक मग में खाली कर सकता हूँ, क्योंकि मग गिलास से भरा है। अगर मैंने मग को खाली करना है तो मैं एक जग में खाली कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो टम्बलर है वो मग से ज़्यादा बड़ा है। अगर मैंने उस टम्बलर को खाली करना है तो मुझे बकेट चाहिए, अगर बकेट को खाली करना तो मुझे टब चाहिए। वचन में लिखा है ये ब्रह्मांड जो बनाए हैं उसने, ये भी उसको समा नहीं सकते। स्टीफन प्रचार करते कहता है सुलेमान ने उसके लिए भवन बनाया, लेकिन महाप्रतापी परमेश्वर मनुष्य के बनाए भवनों में वास नहीं करता। तो उसने अपने आप को खाली किस में किया? ये एक पहेली है मेरे लिए। और दास का स्वरूप लिया उस महाप्रतापी प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आपको मालूम वो कौन सा दास बना? बंधुआ गुलाम बना, डूलॉस। चौथे दर्जे का नौकर होता था यहूदीगर में एक डूलॉस, जिसे मंडी से खरीदा जाता था। वो नौकर बनकर आया, वो आपके और मेरे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये प्रभु क्या करता है? अद्भुत प्रभु। वचन में लिखा है ही रिडीम्स माई लाइफ फ्रॉम द पिट। पताल में से मेरी जान को क्या कर लेता है? निकाल लेता है। वो पताल में से आपकी जान को निकाल लेगा। आपको मालूम, ध्यान से पढ़िएगा जोना नबी की पुस्तक। जोना नबी मर जाता है। असल में मरने से पूर्व वो प्रार्थना करता है। पढ़िए परमेश्वर के कलाम में। वो कहता है, बताता है वो अपना शियोल का एक्सपीरियंस। हिब्रू में शियोल वर्ड है वहाँ पे। कहता है मैंने शियोल से पुकारा, यहोवा ने मुझे सुना। वो समुंदर के अंदर जो वीड्स हैं, रस्सियाँ हैं नीचे होती हैं, उसके अंदर स्टक हो गई थी उसकी जान। वो मर गया था। परमेश्वर उसे निकाल लाता है और फिर उसके अंदर जीवन डालता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसे मनुष्य का पुत्र, जैसे जोना पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मौत की रस्सियों को तोड़ देता है वो। हालेलुया, हालेलुया। मौत के बंधनों को तोड़ता है यीशु मसीह। मृत्यु के ऊपर विजय है केवल यीशु मसीह, जिसने मौत को हराया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं, वो उनसे वादा करता है उनके ऊपर मृत्यु का कोई असर नहीं होगा। ये जो मृत्यु, मसीह लोग जो मरते हैं वो मरते नहीं, सोते हैं केवल। हालेलुया। एक और मृत्यु है, अनंत मृत्यु। वचन में लिखा है जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु की शरण में नहीं आए, वो अनंत मृत्यु का ग्रास बनेंगे, हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। लेकिन जो प्रभु में जिसने नया जन्म पाया है, उसके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है। हालेलुया। वो रिडीम हो गया, शियोल से उसे छुड़ा लिया गया। तो क्या लिखा यहाँ पे, जो मैं वचन आपको सुना रहा था इब्रानियों की पत्री में, फिर से आइए इब्रानियों की पत्री में 13 अध्याय में
इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय में, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, अब देखिए, नाउ द गॉड ऑफ पीस दैट ब्रॉट अगेन फ्रॉम द डेड अवर लॉर्ड जीसस द ग्रेट शेपर्ड ऑफ द शीप थ्रू द ब्लड ऑफ द एवरलास्टिंग कवनेंट। यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे लौट पाया? क्या लिखा है यहाँ पे? थ्रू द ब्लड ऑफ द एवरलास्टिंग कवनेंट। यीशु मसीह अपने लहू की कुदरत के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू लासानी है। यीशु मसीह के लहू के जैसा किसी का लहू नहीं है। यीशु मसीह का लहू अद्भुत है। यीशु मसीह के लहू की मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह का लहू मरता नहीं है। हालेलुया। अद्भुत अनूठा लहू है। मैंने शायद आपसे पहले भी एक बार शेयर किया है। एक व्यक्ति था, वो प्रभु में सो गया, अमेरिकन था, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी था। उसने अपने जीवन के 40 से ज़्यादा साल इज़राइल में गुजारे। उसका नाम था रॉन वाइट, RONWHYTE। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सीधा व्यक्ति, सरल इंसान, प्रभु का दास। उसको परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दिखाया। उसने इस यरूशलेम में आर्कियोलॉजी के तहत, पुरातत्व विज्ञान, पृथ्वी को खोज के ऐसी अद्भुत चीज़ें निकाली हैं। अद्भुत चीज़ें आत्मा ने उसे बताई। तो वो अपनी एक रिसर्च के विषय में बताता है कि यरूशलेम की ईस्टर्न साइड से ऐसे जब वो घूम के जा रहा था, मोरिया पहाड़ के साथ साथ बिल्कुल ऊपर सामने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है, उसके ऐसे नीचे से घूम के जा रहा था, तो प्रभु की आत्मा ने उसे बताया कि जो अहद का संदूक है, जो मैं आपको दिखाता हूँ सर, मेरे पास है, जो उसकी कॉपी है, जो असली अहद का संदूक है वो इस अंदर है। तो वहाँ पे उसने देखा कि सड़क के साथ छोटा सा ऐसे खुली सी ओपनिंग है, पर पत्थर लगे हुए हैं। तो उसने उसको खोदा, परमिशन ली। उसके पास वो आर्कियोलॉजिस्ट था, साइंटिस्ट था, उसने उसकी खुदाई करवाई कुछ लोगों को लेके। तो उसे ऐसे दिखा कि नीचे एक छोटी सी जगह है। उस जगह को आगे खोदा तो फिर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी वॉल है, दीवार है। उस दीवार को उन्होंने थोड़ा सा बीच में से क्रैक करके देखा तो उनको आगे एक और दीवार दिखाई दी। फिर वो अंदर घुस के उस दीवार को खोदा तो हल्की सी टनल सी दिखी एक। फिर वो उस टनल के अंदर थोड़ा सा गया वो खुद रॉन वाइट, तो उसको आगे एक और दीवार दिखी। तो इस काम को करते उनको कितने दिन लग गए। इवेंचुअली जब उन्होंने उस दीवार को हल्का सा क्रैक किया और उसने टॉर्च लाइट से अंदर देखा तो वह हैरान रह गया। अंदर वहाँ पे परमेश्वर की वाचा का संदूक पड़ा था। हालेलुया। और परमेश्वर की हैकल की कुछ पवित्र चीज़ें थी अंदर। आपको मालूम, अगर आप पढ़ के देखेंगे हिस्ट्री ध्यान से, बाइबल को ध्यान से खोजेंगे, राजा नबूकदनेस्सर जब यरूशलेम को लूट के ले गया, वो हैकल के 600 पवित्र चीज़ें ले गया संग में, लेकिन उसके हाथ में ऐद का संदूक नहीं आया। ना ही ऑल्टर ऑफ द इंसेंस आई, ना ही टेबल ऑफ द शू ब्रेड आया, ना ही मनोरा आई। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी परमेश्वर की हैकल में, वो नबूकदनेस्सर के हाथ में नहीं आई। लेकिन वो बर्तन जो थे, पवित्र बर्तन, सोने चांदी के, वो सब ले गया संग में। तो हिस्ट्री बताती है कि जब नबूकदनेस्सर ने घेरा डाला, वो एक एक साल घेरा डालता था यरूशलेम को। 3 बार घेरा डाला उसने। 3 बार में यरूशलेम को लूट के लेके गया। थर्ड टाइम सब कुछ लूट के ले गया। तो उसके लुटने से पहले वचन हिस्ट्री बताती है कि यिर्मयाह ने कुछ अपने सेवक संग में लिए और परमेश्वर के ऐद के संदूक को रात के समय उस जगह छिपा दिया था। उसे ग्रोटो ऑफ जरमाया कहते हैं, जरमायाज ग्रोटो। और रॉन वाइट ने उसको खोजा। रॉन वाइट बहुत प्रभु का सच्चा दास था। उसको प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई अपनी बाइबल के अंदर जो है, पुरातत्व विज्ञान के द्वारा। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी भी चीज़ को लोगों को पब्लिश करके पैसे कमाने का काम नहीं किया। उसने बुक्स लिख के पैसे नहीं कमाए, डॉक्यूमेंट्री बना के पैसे नहीं कमाए। बहुत साधारण व्यक्ति था वो, इसलिए क्योंकि वो उसका हृदय नेक था प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु ने उसे ये बड़ी बड़ी चीज़ों की बरकतें दी।
वो लिखता है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, एक तो बुक्स है शायद जो आप पढ़ सकते हो। बहुत से प्रभु के अजीम बंदे ये मानते हैं विषय में कि रॉन वाइट सच्चा व्यक्ति है, उसने कोई झूठ नहीं बोला। हालेलुया। तो क्या रॉन वाइट बताता है कि उसने अंदर झुक के ऐद के संदूक पे महसूस किया कि वहाँ कोई चीज़ जमी है। ऐद का जो संदूक होता था उसके ऊपर कफ़ार जिसे बोलते हैं, कफोरत, जिसे मर्सी सीट कहते हैं, कफ़ार होता था, मर्सी सीट बिल्कुल टेबल के ऊपर, उसके ऊपर ऐसे करूब बने यूँ देखते थे उसको। वो जो कफ़ार होता था उसके ऊपर लहू अर्पण किया जाता था, हर साल खून उंडेला जाता था। हालेलुया। मैंने आपको बताया यीशु मसीह फसह का मेमना है। हालेलुया। और दूसरी कुर्बानी कौन सी है बाइबल में? एक मेमने की है, दूसरी जो फसह को होती है। फसह के बाद आता है अखमीरी रोटी, वो भी यीशु मसीह की देह है अखमीरी रोटी, क्योंकि यीशु मसीह की देह में पाप नहीं है। फिर आता है पहला फल, वो मुर्दों में से जी उठ के पहला फल बन गया। और 50 दिन बाद पहले फल के क्या आता है? पंतेकुस्त आता है, और पंतेकुस्त को पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और उसके बाद जो अगला पर्व है वो रोश हशाना है, तुरियों का पर्व है, योम तिरुआ, तुरी फूकी जाती है, तुरी प्रधान दूत फूकेगा। हालेलुया। और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, हम जो जीवित होंगे बदल जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। उसके बाद अगला पर्व है योम किपुर, वो कफ़ार है, किपरीम, किपुर जो ऐद के संदूक के ऊपर की जगह है, मर्सी सीट, उसे कफ़ार, किपरीम, कपोर बोलते हैं हिब्रू में, जिसके ऊपर लहू उंडेल दिया जाता है। हालेलुया। तो इस दिन क्या होता है? योम किपुर के दिन 2 बकरे लेता है महायाजक, एक बकरा यहोवा के लिए और एक अज़ाज़ेल के लिए। हालेलुया। एक बकरे को उस पर हाथ रखा जाता है, वो कुर्बान कर दिया जाता है। दूसरे बकरे पे हाथ रख के पूरी इजरायली कौम के पाप उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फिर वो बकरा बियाबान में जाता है, फिर उस बकरे को वो लेके आते हैं, और जो अज़ाज़ेल, वो जो खुरदरी पहाड़ियाँ, वहाँ से उसे नीचे गिरा दिया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसके लाल धागा बांधते हैं, और जब उसकी डेड बॉडी देखते हैं धागा सफ़ेद हो गया होता है। हैकल के बाहर धागा बांधते हैं लाल रंग का, अगले दिन सुबह वो सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, किरमची रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान, बर्फ़ के समान सफ़ेद मैं कर दूंगा। तो योम किपुर की ख़ास बात है अज़ाज़ेल, वो बकरा जो पाप को उठा के लिए जाता है। यीशु मसीह मेमना है फसह का, यीशु मसीह अज़ाज़ेल का बकरा है। यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के लिए जाता है। तो ये दोनों ब्लड आने चाहिए उसके ऊपर, कफ़ार के ऊपर आते हैं, मेमने का और ये ब्लड बकरे का। अब रॉन वाइट ने क्या देखा? उसने देखा कि ऐद के संदूक के, वो अंदर नहीं घुस सका, टॉर्च से ऐसे देखा कुछ जमा है। उसने धीरे से उसका हल्का सा सैंपल लिया और एक शीशी में डाला, वो सूखा खून था, सूखा खून। फिर उसने उसकी ज्योग्राफिकल पूरी टोपोग्राफिक सर्वे किया चॉपर में बैठ के। आप देखिए ध्यान से, ये जो पहाड़ था नीचे ग्रोटो थी, इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे पहाड़ों के बीच में घूम के जाएंगे तो जो दूसरी साइड थी उसकी सदर्न साइड, वहाँ पे गोलगोथा की पहाड़ी है, टॉप पे गोलगोथा की पहाड़ी है जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया है। और आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो सूर्य डूब गया था। हालेलुया। कोई ग्रहण नहीं लगा उस दिन, क्योंकि उस दिन चांद पूरा था। जब फुल मून हो तो कभी ग्रहण नहीं लग सकता, ना चांद को ना सूर्य को। उस दिन सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि धार्मिकता का सूर्य क्रूस पे चढ़ गया। उस दिन सूर्य डूब गया। कब डूब गया? दोपहर के समय। क्यों? मैं आपको बता रहा था वचन में से, अगर आपको याद होगा।
मैंने होशे नबी की किताब में से आपको बताया, होशे नबी भविष्यवाणी करता है दोपहर के समय सूर्य डूबेगा। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के समय क्या हुआ, दोपहर को सूर्य डूबा और फिर डूबने के बाद चढ़ा। यीशु मसीह के क्रूस के 3 दिन 3 रात इस तरह पूरे होते हैं। यहूदी लोग जब सूर्य डूबता है तो दिन शुरू हो जाता है। उस दिन 2 बार सूर्य डूबा तो 3 दिन और 3 रात पूरे होते हैं। खैर, मैं रॉन वाइट की बात की और लेके चलता हूँ। रॉन वाइट ने देखा, क्योंकि कलाम में लिखा जब सूर्य डूबा तो भूकंप आया। भूकंप जब आया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसने अपनी जान दे दी, रोमी सिपाही ने भाला मारा और भूकंप आया और चट्टानें फट गईं। यीशु मसीह के भाला मारा, उसके फेफड़ों को चीर के उसके हार्ट के आर पार हुआ होगा और ब्लड यीशु मसीह का और पानी दोनों फुहारे की तरह बह निकले और वो ब्लड, वो चट्टानें जब फट गईं, तड़क गईं, चट्टानों में से रिश्ता हुआ ब्लड उसके बिल्कुल नीचे जाके ऐद का संदूक था। उस ऐद के संदूक के ऊपर यीशु मसीह का ब्लड गिरा, जिसे लगभग 2000 साल के बाद सूखा ब्लड पड़ा था, उसे रॉन वाइट ने इकट्ठा किया। आपको मालूम, आप इसे देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, वीडियोस देखिए, आपको वहाँ मिल जाएंगे वीडियोस। ये रॉन RONWHYTE एंड द ब्लड ऑफ जीसस, ये करके डालिए, आपको वीडियो मिलेंगे वहाँ पे। रॉन वाइट उस सूखे ब्लड के सैंपल को एक लैब में लेके गया, बहुत बड़ी लैब में, और वहाँ पे उसने साइंटिस्टों से कहा कि इसे रिकॉन्स्टिट्यूट करें। तो उन्होंने बोला कि ये ब्लड सूखा है, ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। उसने बोला प्लीज़ करो। 72 आवर्स, 72 घंटे उन्हें सोल्यूशन में डाल के रखा और ब्लड रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। फिर उस ब्लड को एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप पे रख के। आप हैरान होंगे, रॉन वाइट के साथ 4 साइंटिस्ट और थे, उनमें से ज़्यादा जूइश थे, फ्रेंच भी था शायद एक। जब उन्होंने ब्लड को रखा माइक्रोस्कोप पे, उनको पता लग गया था कि ये बहुत पुराना 2000 साल पुराना ब्लड है, इसमें लाइफ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पे ब्लड को रखा रिकॉन्स्टिट्यूट करके, ब्लड जिंदा था, ब्लड लिविंग था, उसमें जीवन था। फिर वो हैरान क्यों हुए, क्योंकि ब्लड में DNA होता है। हालेलुया। ब्लड के, अभी भी कोई हंसने वाले इमोटिकॉन भेज रहा है, कौन है ये, ज़रा देखिए प्लीज़ इनको। कोई एक बंदा है जो ये, could you kindly check up this guy, who this guy is, he's smiling and angry emoticon भेज रहा है। ये एक ही बंदा है कोई, रॉन वाइट की ये फाइंडिंग है जिसे जेनेटिक साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया है। जब उन साइंटिस्टों ने उस ब्लड को चेक किया, वो हैरान रह गए, क्योंकि वो ब्लड जीवित था। और आपको मालूम, ब्लड के अंदर DNA होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं, लेकिन इसके अंदर Y क्रोमोसोम नहीं था। Y क्रोमोसोम शारीरिक पिता की ओर से आता है, इसमें Y क्रोमोसोम नहीं था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि यीशु मसीह की देह में जो लहू था वो स्वर्गीय पिता का लहू था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की देह में जो लहू था, स्वर्गीय लहू था। वो लहू आपके और मेरे छुटकारे का लहू है। वो लहू स्वर्ग में अर्पण किया गया ताकि हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारी बदकारियाँ मिटाई जाएं। वो जीवित लहू हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है। वो छुटकारे का लहू है, प्रायश्चित का लहू है, मोक्ष का लहू है, निर्वाण का लहू है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जीवित लहू है। यही लहू वचन में लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय के 20-21 वचन को जब हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह को वो लहू मुर्दों में से जिला लाया। पताल, मौत की रस्सियां हार गईं उस जलाली लहू के आगे। यीशु मसीह का पवित्र लहू मुर्दों में से पुनरुत्थान देता है। हमारा छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, बल्कि हमारा छुटकारा मेमने के निष्कलंक लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मेमने के लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिला है।
हम उस लहू का धन्यवाद करते हैं। वो जीवित लहू जो हमारे छुटकारे की गारंटी है, जो हमारी फिरौती के लिए दिया गया है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लहू के लिए, जलाली लहू के लिए पिता का धन्यवाद करें। वो लहू आज भी जीवित है। हालेलुया। उस लहू में चंगाई है, उस लहू में छुटकारा है, उस लहू में नया जीवन, उस लहू में आशा है। वो लहू स्वर्ग का मार्ग खोलता है। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने आपको बताया यशायाह 53 में 2 बातें लिखी हैं हिब्रू में। आइज़ाया 53 3-5, 2 मैंने आपको उस पर टीचिंग दी। 2 डिस्टिंक्ट हिब्रू वर्ड हैं। यीशु मसीह का एक लहू यीशु मसीह की स्किन से निकला जब कोड़े मारे गए। एक यीशु मसीह का लहू यीशु मसीह के अंदर से निकला। डीप वूंड जो यीशु मसीह को मिले, वहां से यीशु मसीह का लहू बहा, जो हमारे अवान को, हमारे अधर्म को धोता है। अवान जो है, जिसे इनिक्विटी अंग्रेजी में कहा गया है, वो डीप सिन है जो हमारे डीएनए में चलता है, हमारे जीनोम के अंदर चलता रहता है, जो हमारी डिप्रेव्ड फॉलन पापी नेचर है, जिसको लेके हम पैदा हुए हैं। उस अवान को, उस गहरी इनिक्विटी को ये लहू धोता है, यीशु मसीह का पवित्र लहू। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस पवित्र लहू के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं, जो हमारी इनिक्विटी को, हमारे डीएनए को धो के साफ करता है, जो जनरेशनल सिन, जनरेशनल कर्सेस को तोड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले श्राप, पाप, बंधन, उन्हें यीशु मसीह का लहू तोड़ता है और हमें चंगा करता है, नरोआ करता है और हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। इस लहू में नहाइए, इस लहू में अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को धोइए। ये लहू जलाली है। हालेलुया। ये लहू आपके जीवन में काम करेगा। ये लहू आपको चंगा करेगा। इस लहू को आप अपनी ढाल बनाइए। इस लहू में अपने परिवार, अपने सदस्यों को, अपने घरानों को छिपाइए। ये लहू आपकी रक्षा करेगा हर पेस्टिलेंस से। ये लहू आपकी रक्षा करेगा हर शैतानी हमले से और आपको महफूज रखेगा। हालेलुया। और ये लहू हमें यीशु मसीह के आगे प्रेजेंट करेगा एक दिन। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस पारलौकिक लहू के लिए। ये खून तेरे लोगों की नस नस में बहे, रूह जिस्म जान में बहे। प्रभु, मैं तेरा ये जलाली खून विश्वास से तेरे इन लोगों के ऊपर छिड़क देता हूँ। तेरी महिमा हो यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।